Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 16 and the name of the chapter is idioms and proverbs. So इस chapter में हम idioms and proverbs को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. Each language has its own special phrases that convey a meaning that is not intrinsic to the words used. ठीक है, ईच लैंग्वेज में उसके कुछ स्पेशल फ्रेजेस होती हैं जो कि जो वर्ड मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं उससे डिफरेंट मीनिंग हमें बताती हैं. ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से यूज होती हैं बेसिकली. ठीक है, दे कैरी द विजडम ऑफ द पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज आर यूज्ड टू एम्बलिश द लैंग्वेज. और साथ ही साथ वो लोगों की विजडम को बताती है, यानी जो लोग उनको स्पीक कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज में वो उनकी विजडम को बताती हैं और उनको एम्बलिश करती है उनकी बेसिकली लैंग्वेज को. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स रीड idioms. Idioms and proverbs are used to make the language more expressive and attractive. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है idioms और proverbs का use हम किस लिए करते हैं लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा एक्सप्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए. ठीक है, they emphasize the message that we want to convey to the listener. ठीक है, साथ ही साथ वो हमारे मैसेज को एम्फसाइज कर देती हैं बेसिकली, जो हम लिसनर को कन्वे करना चाहते हैं यानी लिसनर तक पहुंचाना चाहते हैं. ठीक है, both idioms and proverbs originate from event which may have occurred in the past. दोनों ही हमारी idioms भी and proverbs भी कहाँ से originate हुई हैं ये हमारे पास्ट में जो हमारी चीज़ें हुई हैं उनसे. ठीक है, Some of the common idioms are given below. अब उनमें से कुछ common idioms आपको नीचे यहाँ पर दिए हैं. ओके, यहाँ पर idioms दी हैं और यहाँ पर उनकी meanings बताए हैं आपको. ओके, let's read. First, to keep one's shirt on. It means to control one's anger. यानी कि गुस्सा कंट्रोल करना. To keep one's shirt on. ठीक है, it means to control one's anger. यानी कि किसी भी इंसान को अपना गुस्सा कंट्रोल करना. ओके, second, to be under one's thumb. It means to be under someone's control. यानी किसी व्यक्ति के कंट्रोल के अंडर होना. ठीक है, to blow one's on trumpet. It means self praise यानी खुद की तारीफ. To be hand in glove with means to be a partner in a wrong doing. यानी कि जो गलत कर रहा है उसके साथ पार्टनरशिप करना, पार्टनर बनना. To bring into play means to bring into action. ठीक है, एक्शन में आना. To be in a soup, it means to be in a trouble, मुसीबत में आना. To go on a wild goose chase, it means to do a work which has not result. यानी कि एक ऐसा काम करना जिसका कोई भी परिणाम नहीं मिल रहा है. ठीक है, to leave no stone unturned, it means to try out all alternatives. यानी कि सारी विपरीत चीजें करना. To call in cautions, it means to doubt something. As the crow flies, it means in a straight direct line. Okay, break down means start crying. Let both ends meet means to spend thriftily. ठीक है, to eat one's word meaning to regret and apologize for what one has said. यानी कि अपनी ही गलती के लिए क्षमा मांगना. ठीक है, regret feel करना. Losing ground means losing credibility. Okay, with open arms means to welcome heartily. यानी कि बहुत ही अच्छे से स्वागत करना. By hook or by crook means do one's work by fair or unfair means यानी किसी भी सही और गलत तरीके से काम करना अपना. To pay off old to pay off old scores means to avenge a wrong doing. Off and on means now and then, अब और जब. ठीक है, in good part means without offense. ठीक है, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी गुस्से के. Put a spoke in my wheel means to put obstruction in one's work. यानी किसी भी व्यक्ति के कार्य में अड़चन लगाना. ठीक है, make his mark means distinguish himself. To have it at my fingertip means to know thoroughly. Put one's foot down means to refuse outright. No love lost between them meaning dislike each other. एक दूसरे को पसंद नहीं करना. In the long run means in future eventually. ठीक है, future में लगातार. In the nick of the time just in time.
यानी कि बिल्कुल अभी। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिक मीन्स अंडर ऑल कंडीशन, सभी कंडीशंस के अंडर। सिटिंग इन ऑन दी फैंस मीन्स नॉट डिसाइडिंग विच साइड टू सपोर्ट, यानी कि सिटिंग ऑन दी फैंस मीन्स डिसाइड नहीं कर पाना किसको हम सपोर्ट करें, ठीक है। ब्रॉट टू लाइट मीन्स डिस्क्लोज, बंद करना। बर्न वंस फिंगर मीन्स गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, यानी कि खुद को परेशानी में डालना, ठीक है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, एट सिक्सेस एंड सेवन मीन्स क्या होता है, इन कंफ्यूजन और आउट और डिसऑर्डर। ऑन दी रेड अलर्ट मीन्स ऑन गार्ड। दी ऑर्डर ऑफ द डे मीन्स प्रिवेलिंग कंडीशंस। नेक्स्ट, to keep peace with, to keep peace with means to progress at the same rate में progress करना। out of date means obsolete या फिर ancient। up to date means modern और recent, ठीक है। speak volumes means serves as a strong testimony, okay। hope against hope means keep hope when it is useless, okay। यानी कि यूजलेस होने के बाद भी होप रखना, ओके। गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स गेट इनटू ट्रबल, यानी कि परेशानी में आना। वॉश वंस हैंड ऑफ मीन्स रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व इन एनी मैटर, किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होने के लिए मना कर देना। हिट द नेल ऑन दी हेड, हिट द नेल ऑन दी हेड मीन्स सैड और डन एग्जैक्टली द राइट थिंग, यानी कि जो चीज़ आपसे कही गई है करने के लिए वो आप एग्जैक्टली कर रहे हैं, ठीक है। बी इन हाई स्पिरिट्स means to cheerful and happy, यानी कि खुश रहना। and x to grin means have a personal interest, okay, यानी कि हमारा खुद का इंटरेस्ट उस चीज में होना। spread like wildfire, wildfire की तरह spread होना means spread rapidly, बहुत जल्दी से spread होना। to hurt means affected deeply। have the gift of the gab means a talent for speaking, okay। नेक्स्ट, बी इन द गुड बुक्स, बी इन द गुड बुक्स मीन्स इन फेवर विद इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ फेवर में होना। स्टैंड इन हिज ओन लाइट मीन्स वर्क अगेंस्ट हिज ओन, यानी अपने ही अगेंस्ट वर्क करना। बिहाइंड द सीन मीन्स टू वर्क क्वाइटली अनऑब्स्ट्रवली। फाइट विद द टूथ एंड नेल मीन्स विद ऑल माइट एंड पावर, यानी सभी शक्तियों के साथ अपनी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या बताया है, मैच द इडम्स विद इट्स मीनिंग्स, मीनिंग्स के साथ इडम्स को आपको मैच करना है, ओके। नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक्स विद इडम्स, इडम्स के साथ ब्लैंक्स को फिल करेंगे आप। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट इडम्स अगेंस्ट देयर मीनिंग्स गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पर आपको करेक्ट इडम्स को राइट द करेक्ट इडम्स अगेंस्ट देयर मीनिंग्स गिवन बिलो, या इनके मीनिंग से सामने करेक्ट इडम्स आपको राइट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोवर्ब्स। Proverbs too, like idioms, are used to make the language more expressive and beautiful, ठीक है। Proverbs भी हमारे idioms की तरह ही होती हैं जो लैंग्वेज को और ज़्यादा एक्सप्रेसिव और ब्यूटीफुल बनाने का वर्क करती हैं, ठीक है। They do have a connection with something in the past of history, ठीक है। इनका भी पास्ट में हिस्ट्री के साथ कनेक्शन होता है बेसिकली। Some common proverbs are, अब यहाँ पर आपको कुछ common proverbs दी हैं। फर्स्ट, मेक है वाइल द सन शाइन्स, ठीक है। इट मीन्स नेवर मिस अ गिवन अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको कभी भी जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको मिस ना करना, ठीक है। नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। इट मीन्स लाइक माइंडेड पीपल यूजुअली रिमेन टुगेदर, ठीक है, यानी कि जो माइंडेड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, यूजुअली रिमेन रखते हैं एक साथ, ओके। नेक्स्ट, वंस बिटन ट्वाइस शाय, इट मीन्स वंस फेल्ड द पर्सन विल बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम, यानी कि एक बार व्यक्ति जो फेल हो जाता है वो नेक्स्ट टाइम कैसा रहता है, केयरफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लुक बिफोर यू लीप मीन्स थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को करने से पहले अच्छे से सोचना। नेक्स्ट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इट मीन्स अपीयरेंस में बी डिस्पिटिव, यानी कि अपीयरेंस जो होती है वो दिखावटी होती है, उसको देख के हमको जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 6, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इट मीन्स अपीयरेंस कैन बी डिस्पेक्टिव, यही सेम है कि सारी जो ग्लिटर है वो सभी गोल्ड थोड़ी ना होती है, तो हमें देखते हैं किसी को जज नहीं करना चाहिए, ओके। नंबर 7 is once man meat is another man's poison. What is good for me may not be good for the others. It means यानी कि जो मेरे लिए अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी अच्छा हो, ओके।
वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले. इट मीन्स वट एवर वर्क यू डू इट प्रॉपरली एंड होल हार्टेडली. जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको आप प्रॉपरली और पूरे दिल यानी मन लगा के उसको करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, आस्ट्रिच इन टाइम सेव्स 9. मीनिंग है इसका हमारा प्रिवेंटेशन अगेंस्ट एनीथिंग इज बेटर. ठीक है. किसी भी चीज को बेटर करने से अच्छा है कि प्रिवेंटेशन हम उसके अगेंस्ट करें. नेक्स्ट, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज. इट मीन्स अ फुलिश पर्सन टॉक्स मोर. यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा बातें करते हैं. नेक्स्ट, 11, एन आइडियल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप. ठीक है. वन who does not work thinks of some mischief. Okay. Next, a rolling stone gathers no moss. A person who does not have an aim cannot do anything. यानी कि जो जिस व्यक्ति का कोई एम नहीं होता वो कुछ भी नहीं कर सकता है. ठीक है. Next, a burnt child dreads the fire. Next, it means a person who has failed once is careful next time. It means कि जो व्यक्ति एक बार फेल हो जाता है वो नेक्स्ट टाइम के लिए हमेशा केयरफुल रहता है. Fools rush in where angels fear to tread. Means है इसका foolish people do not know how to behave in a place. यानी कि मूर्ख लोगों को नहीं पता होता कि एक किसी भी जगह पर बेसिकली उनको किस तरीके से बिहेव करना है. ठीक है. नेक्स्ट, 15, a bad workman quarrels with his tools. ठीक है. a foolish man does not disrespect his work. यानी कि कोई भी foolish व्यक्ति जो होता है वो अपने a foolish man does not respect his work. यानी कि अपने वर्क की रिस्पेक्ट नहीं करता जो फुलिश व्यक्ति होता है. ठीक है. fill in the blanks with proverbs. proverbs के साथ आपको blanks को fill करना है. complete the following proverbs. यहाँ पर proverbs को complete करना है. match the two parts of the proverbs and complete them. 2 parts में divide कर दिया है basically proverbs को. match करके आपको उसको add करना है, basically जोड़ना है. ठीक है. सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है स्टूडेंट्स. होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.